Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کود پڑا تو پھر کیا ہوگا. اور یہ 12 جون کی ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ 12 جون کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس تھا. اس کے 35 ممبر ہیں، اور اس اجلاس میں امریکہ نے ایک ریزولوشن موو کی جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھی. اور اس ریزولوشن میں کہا گیا کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر جو تحفظات ہیں اس پر بہت سے اعتراضات ہیں. کل رات ایران کے دارالحکومت تہران کے مغرب میں جو زلزلہ آیا وہ ایک عام زمینی لرزش نہیں تھی، وہ 5.1 یا 5.2 کی شدت رکھنے والی ایک لرزش زمین تھی. لیکن زمین سے زیادہ اس نے اقوام متحدہ، نیٹو، IAEA، CIA، موساد اور ہر اس ادارے کی میز کو ہلایا جہاں ایران کے نیوکلیئر عزائم کی فائلیں رکھیں. یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے صدر ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دلوانے کی سفارش. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا خیال ہے اس سے بہتر تبصرہ اس کے اوپر اور کوئی ہو نہیں سکتا. نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال. میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام. حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں. دوستو، آج رات مطلب جو بیت گئی آدھی رات کے وقت، ابھی ٹائم نہیں بتایا انہوں نے، امریکہ نے ایران کے جو ایٹمی تنصیبات تھی، 3 جو پلانٹ تھے ان کے، اصفہان، فرڈو اور ناتانز، یہ 3 تھے، ان کے اوپر بنکر بسٹر سے حملہ کیا. ویسے 2 دن قبل ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں ایران کو وقت دے رہا ہوں اور اس کے اوپر کب حملہ کرنا ہے یہ 2 ہفتے کے بعد ہم بتائیں گے. لیکن یہ 2 ہفتے ان کے 2 دن میں پورے ہو گئے اور کل رات انہوں نے ایران پر بنکر بسٹر سے حملہ کر دیا. بعد میں انہوں نے ایک تو ٹویٹر پہ اپنا میسیج ڈالا جس میں بتایا کہ ہم نے ایران کے 3 ایٹمی پلانٹ جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں بنکر بسٹر سے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بم، نیوکلر بم کو چھوڑ دیجئے، کنونشنل میں یہی ہے جو کہ 30,000 پاؤنڈ کا ایک بم ہے، اور یہ صرف اور صرف امریکہ نے بنائے ہیں، اس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کو اٹھانے کے لیے بھی اسپیسیفک بوئنگ کا ہوائی جہاز ہے B-2، جو کہ ایک جہاز بیک وقت صرف 2 بم اٹھا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کل رات جب حملہ ہوا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر تو ظاہر ہے اس میں 3 جہازوں نے حصہ لیا ہوگا.
क्योंकि हर जगह वो 2 बम ही गिराते हैं। ये बम ऐसे हैं कि क्या है कि ईरान की जो एटमी तनसीबात है ना, वो ज़मीन से 300 फीट अंदर है। फर्डो में तो वो पहाड़ है, उसके अंदर है। इसके लिए इसराइल ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि आप इनके ऊपर जो है बंकर बस्टर से हमला करें। ये जो बम है, ये जब गिरता है, एक तो इसमें कंप्यूटर होता है, उसमें उसके कोऑर्डिनेट भर दिए जाते हैं कि उसको कहाँ जाकर गिरना है। वो ठीक उसी जगह पे ही जाके गिरता है, खुद ब खुद। दूसरा, वो पहले जमीन पे गिरने के बाद 200 फीट तक ड्रिल करता है, अंदर चला जाता है 200 फीट नीचे जाने के बाद फिर फटता है। जिसकी वजह से कल आज सुबह ट्रंप ने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है इसके ये तीनों एटमी तनसीबात तबाह हो गए हैं, लेकिन अगर उसके कहने के मुताबिक खुदा न खास्ता कोई बच गया है तो हम अभी बैठे हैं, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। कल पाकिस्तानी यूट्यूबर ये खबर दे रहे थे कि इस्फहान में, ईरान के इस्फहान शहर में, जहाँ पर एटमी प्लांट है उनका, वहाँ पर एक जलजला आया है। पता नहीं 5.1 या 5.5 ऑन द रिक्टर स्केल, लेकिन वो अंदाजा ये लगा रहे थे कि इससे हो सकता है कि ईरान ने अपना एटमी धमाका कर दिया है। ये सिर्फ जलजला नहीं था, ये जमीन की छाती पर किसी वजनी राज का धड़कना था। बात वहीं से शुरू हुई जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए। वो हमले फर्दो, नतांज, अस्फहान जैसे नामों के गिर्द घूमते रहे। उन्हीं साइट्स पे जहां दुनिया मानती है कि ईरान अपना एटमी मुस्तकबिल तैयार कर रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन तमाम हमलों के बाद, कारी वार के बाद, दुनिया के किसी इदारे, किसी एजेंसी, हत्ता के किसी सैटेलाइट से भी किसी किस्म की ताबकारी की इत्तला यानी रेडिएशन लीकेजेस मौसूल ही नहीं हुई। ना हवा में कोई खतरनाक ज़र्रात पाए गए, ना जमीन पर कोई जहरीली लहर, ना कोई अलार्म बजा। फिर ईरान ने बाकायदा ऐलान किया कि हमने अपने एटमी असासे महफूज जगह पर मुंतकिल कर दी और ईरान जो है वो एटम बम बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। ये जो माजी में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मौक़िफ़ था, ये रेजोल्यूशन उस मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी कर रही थी और इस रेजोल्यूशन की खुलकर मुखालफत की रूस ने, चीन ने और बुर्किना फासो ने। पाकिस्तान पर प्रेशर था कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान ने इसके हाकिया मुखालफत में वोट ही नहीं दिया और एब्सटेन कर गया। यानी उसने एटम बम बना लिया है। अब ये कल की बात है और आज रात को, मतलब ये कल और आज के बीच में चंद घंटों के बाद उसी इस्फहान के ऊपर ये हमला हो चुका है और उसकी एटमी तनसीबात को बर्बाद कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि अमेरिका तो बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन 18 घंटे लग जाते हैं जहाज को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये जो B-2 बमबार है कहाँ से उड़े होंगे? अब ये बताया किसी ने नहीं, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हो सकता है कि ये पाकिस्तान के हवाई अड्डों से उड़ाए गए हों। जैकबाबाद हो सकता है, पसनी हो सकता है, ग्वादर हो सकता है, क्योंकि ये इलाके जो है ईरान के नज़दीकी इलाके हैं और आराम से एक हवाई जहाज उड़ के, बम गिरा के और वापस अपनी मंजिल पे सेफ एंड सिक्योर पहुंच सकता है। और ये ट्रंप ने कहा है कि हमारे जहाज सलामती से अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर
वो पाकिस्तानी तो यूट्यूबर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि चंद रोज कबल जब ट्रंप ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की दावत की थी दोपहर के खाने की, उस वक्त आसिम मुनीर ने कहा था कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ट्रंप की खुशामद की थी उसने, और उस मिशन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने सरकारी तौर पर एक खत लिखा है नोबेल अकेडमी को, फाउंडेशन को, कि आप इस साल का पीस प्राइज, अमन का जो इनाम है, वो सदर ट्रंप को दे दे, क्योंकि उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये जो छोटी जंग हुई उसके बंद कराने में अपना किरदार अदा किया है। ये तुम्हें सूझी क्या? शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तुमतराक से रिकमेंड किया है, साइटेशन है एक हुकूमत की तरफ से, यानी कोई मौका जग हसाई का, सेल्फ मॉकरी का ये हजरत जाने नहीं देते। शायद बार बार काम पे जाके इनकी शर्म ही मर गई है। और आपको पता काम कौन सा है जिस पर ये जाते हैं? ये जो लाहौर शहर के गदागर हैं, ये इसे काम पे जाना कहते हैं कि जल्दी करो, काम पे नहीं जाना। चुनांचे अपनी रिवायती मांगा कशी में मुल्कों मुल्कों सफर करके, घाट घाट का पानी पीकर, भांत भांत की बोलियां सुनकर शहबाज शरीफ की शर्म वाकई खत्म हो चुकी है। सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, बड़े बड़ों की शर्म खत्म हो चुकी है कि तुम किस शख्स को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे हो, जिसकी नाक तले गजा में आज भी खून की होली खेली जा रही है, जिसने ना सिर्फ इस जिल्लत पर सरफ नजर किया, कनाइव किया, बल्कि हथियार फराम करके, आशीर्वाद देकर उसकी बाकायदा मुआवनत की, और तुम हो कि उसे नोबेल का अमन प्राइज दिलवाने जा रहे हो। आप सोचिए, वो ईरान जिसके ऊपर मुसलमान मुल्क है, वही ट्रंप बंकर बस्टर से हमला करता है, उसकी एटमी तनसीबात तबाह करता है, उसको एक दूसरा इस्लामी मुल्क जो उसका पड़ोसी भी है, वो उसी बंदे के लिए ये सिफारिश करता है कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब भी क्या पाकिस्तानियों को कोई ज़रूरत है कि उनको कोई सबूत चाहिए कि पाकिस्तान सरकार ने हमेशा दूसरे मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, भले ही वो अफगानिस्तान क्यों न हो, परवेज मुशर्रफ की तरफ से 2001 में, या 2025 में जनरल आसिम मुनीर ही क्यों न हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।